شہر اولیا میں انٹرنیشنل خواتین کرکٹ کا میلہ سج گیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ ویمن ٹیم دوسرے ٹی20 میچ میں مد مقابل جنوبی افریقہ کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ۔ پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ اس وقت ہمارے نمائندے زہیب بخاری اسٹیڈیم کے باہر موجود ہیں۔ جی زہیب، بتائیے گا شہری کتنے پرجوش ہیں؟ آج بالکل اس وقت کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر موجود ہیں اور ساؤتھ افریقہ وومنز اور پاکستان وومنز کا جو میچ ہے، دوسرا ٹی20 میچ ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ساؤتھ افریقہ نے جو ہے وہ پہلے ٹاس جیتا اور ٹاس جیتنے کے بعد پہلے پاکستان کو جو ہے وہ بیٹنگ کی دعوت دی ہے اور اس کے بعد اب پاکستان نے جو ہے وہ بیٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم بات کریں تو ساؤتھ افریقہ کو جو ہے وہ پاکستان پر ایک میچ کی جو ہے وہ برتری بھی حاصل ہے، کیونکہ یہ سیریز کے 3 میچ جو ہیں وہ شیڈول ہیں اور آج دوسرا میچ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں جنوبی افریقہ جو ہے وہ اپنا پہلا میچ جو ہے وہ پاکستان سے 10 رن سے جو ہے وہ جیت چکا ہے۔ تو آج جو ہے وہ دوسرا میچ اور پاکستان کے لیے یہ میچ جو ہے وہ کافی اہمیت کا بھی جو ہے وہ حامل ہے، کیونکہ اگر پاکستان نے سیریز بچانی ہے یا پاکستان نے اس میچ میں اس سیریز میں ان رن ہے تو اس کے لیے یہ میچ جیتنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ گزشتہ جو میچ میں غلطیاں کی گئی ہیں بیٹنگ کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ دور کیا جاتا ہے۔ تو اب کیونکہ فاطمہ ثنا جو کپتان ہے پاکستان کی، وہ بھی جو ہے وہ آج دوران ٹاس وہ کافی پر امید بھی تھی کہ آج کا میچ جو ہے وہ ہم جیتیں گے تو وہ بھی کافی جو ہے وہ پر امید بھی نظر آ رہی تھی کہ ٹیم نے جو ہے وہ کافی ورک بھی جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ساتھ ہی اگر ہم بات کریں شائقین کے حوالے سے، تو شائقین کرکٹ کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے اور اب اسٹیڈیم کے گیٹ کے باہر ہی موجود ہے میرا کیمرامین رانا بلال۔ اگر آپ کو یہ مناظر دکھائیں تو شائقین کرکٹ کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور شائقین جو ہے وہ کافی پرجوش میں جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ آج دوسرا میچ ہے اور دوسرے میچ میں بھی جو ہے وہ پی سی بی کی جانب سے آج ٹکٹس جو ہے وہ مفت جو ہے وہ کی گئی تھیں۔ تو اس سلسلے میں شائقین کی ایک بڑی تعداد اسٹیڈیم کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ اس طرف کے اگر ہم آپ کو مناظر دکھائیں تو شائقین جو ہے وہ فری شٹل سروس سے جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو بچے بھی جو ہیں وہ اس وقت اسٹیڈیم میں جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں اور فاطمہ جناح ٹاؤن سے جو ہے وہ شٹل پارکنگ کی گئی ہے اور اس کے بعد شٹل سروس سے جو شائقین کرکٹ ہیں وہ جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں۔ تو آج کے میچ کی اگر ہم خاص بات کریں تو آئی سی سی جو وومنز چیمپئن ٹرافی ہے وہ بھی جو ہے وہ ملتان پہنچ چکی ہے اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ اس کی رونمائی بھی جو ہے وہ کی جائے گی اور شائقین کرکٹ جو ہے وہ آئی سی سی کی جو چیمپئن ٹرافی جو ہے وہ گزشتہ روز چونکہ لاہور میں تھی، آج جو ہے وہ ملتان پہنچ چکی ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ دیکھ سکیں گے اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ اس کی جو رونمائی ہے ٹرافی کی وہ بھی جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ اب پاکستان نے اپنی بیٹنگ کا جو آغاز ہے وہ تو کر دیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو پاکستان ہے وہ سیریز بچانے کے لیے جو ہے وہ کتنا اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ تو دونوں ٹیموں کے لیے یہ اہم میچ ہے۔ اگر ساؤتھ افریقہ یہ میچ آج کا جیت جاتا ہے تو جنوبی افریقہ جو ہے وہ یہ سیریز بھی اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، تاہم پاکستان کی جانب سے بھی جو ہے وہ بھرپور کوشش کی جائے گی کہ ایک اچھا ٹارگٹ جو ہے وہ دیا جائے اور تاکہ اس کے تعاقب میں جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ ایک پہاڑ سے ہدف دے کر اچھی بالنگ کر کے جو ہے وہ جنوبی افریقہ کو شکست بھی جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ ہم اگر دوسری جانب سیکیورٹی کی بات کریں تو سیکیورٹی کے بھی جو ہے وہ فل انتظامات کیے گئے ہیں۔ 5000 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران اپنی ڈیوٹی کے بھی جو ہے وہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ واک تھرو گیٹس بھی جو ہے وہ نصب کیے گئے ہیں، سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے بھی جو ہے وہ نگرانی کی جا رہی ہے۔ تو کافی سکون کے ماحول میں جو ہے وہ یہ میچز کا انعقاد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور شہریوں سے بھی یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ اسٹیڈیم آئیں، اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ ہیں اور یہاں پر آ کے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے وومنز ٹیم کے جو میچز ہیں اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انجوائے کریں۔ جی یہ بھی بتائیے گا کہ ٹریفک پلان کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ زہیب بخاری، بتائیے گا ٹریفک پلان کیا جاری کیا گیا؟ ٹریفک کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ٹریفک پولیس نے جو ہے وہ اپنا روٹ پلان جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے، کیونکہ جو پارکنگ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے اسٹیڈیم کے۔ اگر ہم سراؤنڈنگز کی بات کریں تو وہاں پر ٹریفک جو ہے وہ جب ٹیموں کی موومنٹ ہوتی ہے اس ٹائم جو ہے وہ صرف 10 سے 15 منٹ کے لیے جو ہے وہ ٹریفک کو بند کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی تھوڑی سی جو ایشوز ہیں ملتانیوں کو وہ فیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم پارکنگ کے حوالے سے بات کریں تو فاطمہ جناح جو کہ اس کے بالکل 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پر جو ہے وہ پارکنگ کا انتظام
इंतजाम जो है वो किया गया। जो शहरी अपनी गाड़ियों पर आ रहे हैं या अपनी मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं तो वो वहाँ पर आके अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी को जो है वो पार्क करते हैं और उसके बाद वहाँ से जो फ्री शटल सर्विस है उसके ज़रिए जो है वो शहरियों को जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको जो है वो यहाँ पर स्टेडियम के दरवाजे तक जो है वो पहुँचाया जाता है। तो इसी सिलसिले में ट्रैफिक के हवाले से भी जो है वो एहलकार मौजूद हैं, मुख्तलिफ डाइवर्शंस के हवाले से जो है वो मौजूद हैं और इस सिलसिले में जो ट्रैफिक का प्लान जो है वो जारी किया गया था। तो जो CTO मुल्तान है वो खुद ट्रैफिक के हवाले से भी जो है वो निगरानी कर रहे हैं। ट्रैफिक के इंतजामात की जो है वो अब से कुछ देर पहले जो सरदार मुबारक खान है वो यहाँ पर पहुंचे थे। ट्रैफिक के इंतजामात को भी जो है वो देखा, पार्किंग के हवाले से भी जो इंतजामात हैं उनको जो है वो देखा। तो शायकीन भी इंतजामात के हवाले से काफ़ी खुश हैं और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का भी खास तौर पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने उनके लिए जो एक तफरी है वो मुहैया जो है वो किया। तो हम तादाद भी देख सकते हैं कि शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद जो है वो स्टेडियम की जानिब जो है वो गामजन है। बच्चे भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो फैमिलीज़ हैं वो भी जो है वो आ रही हैं मैच को जो है वो खास तौर पर इंजॉय करने के लिए। बच्चे जो हैं वो खास तौर पर काफ़ी पुरजोश जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बे फॉर्म पर जो है वो इनकी एंट्री की जा रही है, जबकि जो 18 साल से ऊपर के अफराद हैं उनको जो है वो शनाख्ती कार्ड पर जो है वो उनकी एंट्री की जा रही है। जी सैयद ज़ोहैब बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका मैच के दौरान रेस्क्यू का इमरजेंसी कोर प्लान मुरतब कर लिया गया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच के दौरान रेस्क्यू हाई अलर्ट। 80 रेस्क्यू स्टाफ, 5 फायर टेंडर्स, 5 एम्बुलेंसेज ड्यूटी पर मामूर, 8 मोटर बाइक्स एम्बुलेंसेज, 1 स्पेशल व्हीकल्स और 2 ऑफिशियल व्हीकल्स ड्यूटी पर तैनात हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू मुल्तान खुद निगरानी कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं मुल्तान में रेस्क्यू का पाक और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका मैच के दौरान इमरजेंसी कोर प्लान मुरतब। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच के दौरान रेस्क्यू हाई अलर्ट। 80 रेस्क्यू स्टाफ और 5 फायर टेंडर्स, 5 एम्बुलेंसेज ड्यूटी पर तैनात हैं। 8 मोटर बाइक्स एम्बुलेंसेज और 1 स्पेशल व्हीकल्स और 2 ऑफिशियल व्हीकल्स ड्यूटी पर तैनात। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू मुल्तान खुद निगरानी कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं मुल्तान में रेस्क्यू का पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका मैच के दौरान इमरजेंसी कोर प्लान मुरतब कर लिया गया। बहावलपुर जिले इंतजामिया की सस्ती या ट्रांसपोर्टर्स की हटदर्मी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का रिलीफ मुसाफिरों को मुंतकिल ना किया जा सका। लारी अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स का मुसाफिरों से ताहाल पुराने और मनमाने किराए वसूल करने का सिलसिला जारी है। बहावलपुर की अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात से महरूम। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का रिलीफ ताहाल मुसाफिरों को मुंतकिल नहीं किया। लारी अड्डा पर मुसाफिरों से अभी तक पुराना और मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने भी किरायों में कमी करने की हिदायत की थी, मगर लारी अड्डा पर मौजूद तमाम टर्मिनल्स पर नए किराएनामे आवेजान नहीं किए जा सके। मुसाफिर कहते हैं अभी तक पुराना किराया ही वसूल किया जा रहा है, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। किरायों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर होना चाहिए था। नहीं, किराए में ज्यादा तो कमी नहीं देखी गई फिलहाल। जैसे पहले ही मतलब चल रहा था वैसा ही हुआ है, ज्यादा मतलब पिछले कुछ महीने पहले जैसे देखे आए थे वैसे ही है। ट्रांसपोर्टर्स का इस हवाले से कहना था कि ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी के बायस नया किरायानामा आवेजान नहीं कर सके। आज से नए किरायानामे जारी कर दिए हैं। ये ऐसे है कि 15 तारीख को जो है ना डीजल जो हमने पुराना डाला है वो था पहले वाला, 16 तारीख को हमने वही किराया लिए हैं। उसके बाद हमने ये किराया फौरी तौर पे जनाब DCO साहब के हुक्म के मुताबिक ये हमने 10 रुपए फी स्टाफ कम किया है। पहले जो था हमारा 800 रुपए किराया था, अब 750 रुपए किराया हमने बहावलपुर से रहीम खान का किया। बस अड्डों के अलावा गाड़ियों पर भी नए किराएनामे अवेजा नहीं किए गए। मुसाफिरों ने डीजल की कीमत में कमी का रिलीफ फौरी तौर पर फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। डिप्टी कमिश्नर का जनरल बस स्टैंड बहावलपुर का अचानक दौरा। DC ने बस टर्मिनल पर नए किराएनामे के इतलाक का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक पहुंचाया जाए। ट्रांसपोर्टर किरायों में कमी को यकीनी बनाया जाएगा। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर का जनरल बस स्टैंड बहावलपुर का अचानक दौरा। DC ने बस टर्मिनल पर नए किराएनामे के इतलाक का जायजा लिया। पेट्रोल की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक पहुंचाया जाए। DC का कहना था कि ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी को यकीनी बनाया जाएगा। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बहावलनगर में पेट्रोल की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुंचाने का मिशन जारी। जिले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चेकिंग जारी। डिप्टी कमिश्नर ने मुसाफिरों से किराए की वसूली बारे दरियाफ्त किया। जायद वसूल किया जाने वाला किराया
मौके पर मुसाफिरों को वापस करवाया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए। डिप्टी कमिश्नर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग देखकर शदीद बरहम हुए। मुख्तलिफ शाहराहों पर किराएनामे की चेकिंग के लिए नाके लगाए गए। ओवरलोडिंग गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। स्मोक के बायस बनने वाली गाड़ियों पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। आवाम को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करना अव्वलीन तरजीह है। भावनगर में पेट्रोल की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुंचाने का मिशन जारी है। जिले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चेकिंग जारी। डिप्टी कमिश्नर ने मुसाफिरों से किराए की वसूली बारे दरियाफ्त किया। जायद वसूल किया जाने वाला किराया मौके पर मुसाफिरों को वापस करवाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, एसी दुनियापुर इनेक्शन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट किराएनामों की चेकिंग, मुसाफिरों के टिकट चेक किए, ओवर चार्जिंग पर भारी जुर्माने, जायद किराया वसूल पर मुसाफिरों को किराया वापस करवाया। 2 मुसाफिर अड्डे पर सहूलियात की कमी पर सील कर दिए गए। एसी दुनियापुर अनंत फजील बाजा का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ होंगी। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, एसी दुनियापुर इनेक्शन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट किराएनामों की चेकिंग, मुसाफिरों के टिकट चेक किए और ओवर चार्जिंग पर भारी जुर्माने भी किए गए। जायद किराया वसूली पर मुसाफिरों को किराया वापस करवाया। 2 मुसाफिर अड्डे सहूलियात की कमी पर सील। एसी दुनियापुर अनम सगीर बाजवा का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम को मुंतकिल करने का मिशन। जिले विहाड़ी में नए किराएनामा पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह खुद फील्ड में मुतहरिक हो गए। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने जनरल स्टैंड का दौरा किया और नया किराएनामा अवेजा करने के साथ अमल दरामद का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जाकर मुसाफिरों से मालूमात ली। सैयद आसिफ हुसैन शाह का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ हर मुसाफिर को मिलेगा। मुसाफिरों तक रिलीफ पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत आ गई है। इस हवाले से गाड़ियों की चेकिंग, मुसाफिरों से वसूल किराए के बारे में हड़ताल जारी है। जायद किराया वापस कराने के साथ जुर्माने और दीगर कानूनी कार्रवाई भी होगी। मुल्तान में रोही की खबर पर एक्शन। डीसी वसीम हामिद का जनरल बस स्टैंड का दौरा। किरायों के इंस्पेक्शन की। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने किरायों में 5% कमी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ पहुंचना शुरू कर दिया। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स का कड़ा एहतसाब किया जाएगा। किराए में 40 से 50 रुपए तक कमी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं डीसी वसीम हामिद सिंधु का जनरल बस स्टैंड का दौरा। किरायों की इंस्पेक्शन की। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने किरायों में 5% कमी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ पहुंचाना शुरू कर दिया। वसीम हामिद सिंधु का कहना था कि जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स का कड़ा एहतसाब किया जाएगा। किराए में 40 से 50 रुपए तक कमी कर दी गई है। तुरंडा मोहम्मद पनाह में जान बचाने वाली अद्वियात का फुकदान। मार्केट से मुतअद्दिद बीमारियों की अद्वियात गायब, मरीज परेशान। शहरियों का कहना था कि महकमे सेहत मार्केट में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम है। पना मार्केट से जान बचाने वाली अद्वियात गायब। चेस्ट इन्फेक्शन और दमा समेत दीगर अहम अद्वियात मार्केट में न होने की वजह से मरीज परेशान। लवाहिकीन का कहना था कि दमा के मरीज सांस में रुकावट के बायस जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं, लेकिन मार्केट में दवाई मौजूद नहीं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लियाकतपुर मार्केट में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम। स्टोरें तो पहले भी थी या दवाई गिनने वास्ते हुण भला या अगला चौथे स्टोर दे होते दमे दी दवाई। मेरे को आप भी सांस दा मसला है तो मेरे घर दे विच भी एक मरीज है सांस दा, जेरे स्टोर ते ना दमे दी दवाई नहीं मिलती। हुकूमत ना मुतालबा मेहरबानी करते सस्ती या महंगी दवाई मिले। शहरी कहते हैं किसी मेडिकल स्टोर पर दमे की मेडिसिन मौजूद नहीं। मरीज घरों में तड़प रहे हैं, अद्वियात की खरीदारी के लिए ख्वार हो रहे हैं। सारे घर दमे दा मरीज है, मैं चौथी मेडिकल स्टोर ते खड़ा इन जगह दवाई नहीं मिलती पई। हुण दवाई ना मिली ता असारे दमे दा मरीज मर गए से। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना है कि कई हफ्तों से अद्वियात की सप्लाई बंद है। सांस और दीगर बीमारियों की मेडिसिन खत्म हो चुकी है। दवाई लेने वाले मरीज मायूस खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं। बहुत सारिया दवाइयां जेड़े दमे और साह दे वास्ते बड़ियां अहम दवाइयां ये सारे पूरे शहर तहसील भर दे विच दवाइयां शार्ट हैं, जिन्हें भी हाथों मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि महकमा सेहत मार्केट में जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ गुलाम अली, रोही, तुरंडा मोहम्मद पना। बिनशनाबाद और गिरदोनवा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश और ठंडी हवा से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। शहर की मरकजी शाहराहों पर बारिश का पानी जमा हो गया। शहरी का म्यूनसिपल कमेटी से फौरी निकासियाब का मुतालबा। बारिश के बायस बिजली की तरसील भी मुअत्तल हो गई।
बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात का मेला सजने को तैयार। सेक्रेटरी जनरल सैयद अबीर अहमद कहते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बार एसोसिएट एग्जेक्टिव नशिस्तों के लिए 15 मेंबरान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जिनका चुनाव कल होगा। कारपोरेट क्लास के 12 एग्जेक्टिव मेंबरान का चुनाव पहले ही कर लिया गया। बहावलपुर ऐवान सनतों व तिजारत के इंतखाबात का पहला मरहला शुरू हो गया। 2 साल के लिए सदर और काबीना का चुनाव किया जाएगा। 12 कारपोरेट एग्जेक्टिव मेंबरान पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। जुमेरात 19 सितंबर को इलेक्शन के जरिए मजीद 12 एसोसिएट एग्जीक्यूटिव मेंबरान का चुनाव होगा। आपको बताते चलें कि 17 तारीख लास्ट डेट थी नॉमिनेशन पेपर्स की विड्रॉल की। कल ही इलेक्शन कमीशन ने फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो जारी की है, जिसमें एसोसिएट क्लास की जो 12 सीट्स हैं उन पे हमारे पास 15 कागज जो हैं नॉमिनेशन पेपर्स रिसीव हुए हैं। इंशाल्लाह कल बरोज जुमेरात 19 तारीख को बहावलपुर चैम्बर में इंशाल्लाह पोलिंग होगी। पोलिंग का जो वक्त है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एसोसिएट मेंबरान का इंतखाब होने के बाद 2 खवातीन मेंबरान का चुनाव होगा, जिसके बाद सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर का भी चुनाव किया जाएगा। 27 सितंबर को मेंबरान का खाना और हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। इसमें ऐसा है कि जब हमारी एग्जेक्टिव कमेटी कंप्लीट होती है 24 मेंबर्स की, मेल्स की, उसके बाद फीमेल रिजर्व सीट्स के ऊपर जो है वो इलेक्शंस होते हैं। 2 रिजर्व सीट्स हैं, उनके ऊपर भी हमारे पास 2 नॉमिनेशन पेपर्स रिसीव हुए हैं। जैसे ही हमारी एग्जेक्टिव कमेटी 26 मेंबर्स पर मुश्तमिल कंप्लीट होगी, उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास 23 को नॉमिनेशन पेपर्स रिसीव होंगे ऑफिस बेरर्स के। 25 को हमने उनकी स्क्रूटनी करनी है और इंशाल्लाह 27 को हमारी एनुअल जनरल मीटिंग है, जिसमें इलेक्शन कमीशन हमारे जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उन्हें अनाउंस करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में साबिक वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा के इत्तेहाद ग्रुप को वाज़ेह बरतरी हासिल है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना हो सकें। शहर में प्याज 140, आलू 110 और टमाटर 80 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। शहरियों ने आला हुकाम से महंगाई में कमी करने का मुतालबा कर दिया। शहर में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। जिले इंतजामिया सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सरकारी नरखनामे में प्याज 125, आलू 78 और टमाटर 62 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में प्याज 140, आलू 110 और टमाटर 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। भिंडी 80, करेले 120, अरबी 160, कद्दू 60 और गोभी 80 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। अदरक 700, लहसुन 560 और लीमू 800 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। इसमें जापानी फल 300, आड़ू 400 रुपए फी किलो, मौसमी 120, गर्मा 250 और अमरूद 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। पपीता 350, नाशपाती 180 रुपए फी किलो और केले 200 रुपए फी दर्जन में दस्तियाब हैं। उन्होंने आला हुक्काम से फल और सब्जियों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इरफान के साथ अहमर खान, रोही, मुल्तान।